વંદન। પ્રવર્તમાન સમયમાં સર્વ શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતો, તપાગચ, જૈન શાસનના પ્રભાવક, ગચ્છાધિપતિશ્રીઓ, આચાર્યશ્રીઓ અને સાધુ સંતો તથા સર્વ ધર્મના ગુરુ ભગવંતો, ગુરુશ્રીઓ, જેઓ કરુણામૂર્તિ, ક્ષમાશીલ, ત્યાગમૂર્તિ, ઉગ્ર તપસ્વી, આધ્યાત્મ રસિક અને અવલૌકિક દિવ્ય દ્રષ્ટિ ધરાવે છે અને જૈન શાસનને જીવંતું રાખવા પ્રતિબદ્ધ છે, તે સર્વે ના ચરણોમાં અનંત કોટી પ્રણામ અને નસમસ્તક વંદન। આજે આપણી વચ્ચે જેમની પ્રસાર માધ્યમથી ઉપસ્થિતિ છે એવા ભારત રાષ્ટ્રના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગરિમામય પ્રતિભા, સ્વભાવે સરળ અને શુદ્ધ આત્મા એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આ રાજ્યના કર્મઠ યુવા નેતા અને આપણા રાજ્યના જૈન પરિવારના ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ, જેઓ પણ પ્રસાર માધ્યમથી આપણી સાથે જોડાશે, આદરણીય સુશ્રાવક શ્રી સુધીરભાઈ સાહેબ તથા મંચસ્થ જીતો અમદાવાદના ટ્રસ્ટીઓ અને મારો જીતો પરિવાર, સમગ્ર જૈન સમાજના અમદાવાદના શ્રાવકો, સર્વશ્રેષ્ઠીઓ, પ્રસંગના સર્વે દાતાઓ, સર્વે ફિરકાના સંઘ સદસ્યગણ, અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને જૈન સમાજ રાજનગરના સુશ્રાવકો, જે આજે ત્રણેય પેઢીની સાથે નવકાર મંત્રના જાપ કરવા માટે આવ્યા છે, તેમને હું હૃદયપૂર્વકથી અભિવાદન કરું છું, સન્માન કરું છું અને સ્વાગત કરું છું। વિશ્વ કલ્યાણના સંકલ્પને જન જન સુધી લઈ જવા આજે આ પ્રાંગણમાં વિશ્વ નવકાર મંત્ર દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે શ્રાવકોના ઘરેથી નવકાર મંત્રના જાપ શરૂ કરી આપણા સ્થાનિકો, સૌ જૈનો સુધી અને સ્થાનકોથી સમૂહ સુધી અને સમૂહથી મહાસમૂહ સુધી લઈ જવાનો આપણે જે સંકલ્પ કર્યો છે, એ આ મહાસંકલ્પમાં નવકાર મંત્રને સર્વોપરી કરવા માટે આપણે કળશ યાત્રા દ્વારા અમે શ્રી સંઘ થકી આપ સૌ થકી પહોંચી વળ્યા છીએ। અમારી આ યાત્રા સફળ રહી છે અને અમે ઘર ઘર સુધી નવકાર મંત્રની પ્રભાવના કરી શક્યા છીએ। પ્રત્યેક જૈનના જીવનમાં ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા રહેલી છે। આ શ્રદ્ધાને અનુભૂતિ જાગૃત કરવા તેમજ અંતર્મનના શુદ્ધિકરણ માટે, આધ્યાત્મિક ઉર્જાને અનુભવવા માટે એકમાત્ર વિકલ્પ છે નવકાર મંત્ર। આની પ્રેરણા આપણા ગુરુ ભગવંતો દ્વારા મળી અને તે અમારા કન્વીનર વિશ્વ નવકાર મહામંત્ર દિવસના અસિતભાઈ અને ભદ્રેશભાઈ અને જીતોના પદાધિકારી દ્વારા એ સફળ બની। આજે એક વિશેષ ગૌરવનું કહેવાનું મન થાય છે કે આજે અમે 25,000 વ્યક્તિ એક્સપેક્ટ કરતા હતા, પણ આ સભા મંડપ અત્યારે ભરાઈ અને એનાથી વધારે માનવ મહેરામણ આપણી સાથે આજે જોડાયો છે। આજે આપણે અમદાવાદમાં અહીંયાથી જેટલા જોડાયા છે એના ઉપરાંત લાઈવ થયેલા ગુજરાતના 28 શહેર છે, તે જગ્યાએ પણ આવા અનુષ્ઠાન ચાલી રહ્યા છે। તે જ સમયે 108 ભારતના શહેર અને સમગ્ર વિશ્વના 33 જેટલા દેશોમાં અત્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને નવકાર મંત્રનું અનુષ્ઠાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ અલૌકિક સમાધિભાવની અનુભૂતિ કરવાની છે। નવકાર મંત્રના 9 પદો, 68 અક્ષરો નો સમાવેશ કરતો આ મંત્ર છે, જેના દરેક પદ ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, અંતરાત્માનો અવાજ, સકારાત્મક ઉર્જા, શાંતિ અને વિશ્વ કલ્યાણનો ભાવ
આ મંત્રમાં અરિહંતો સિદ્ધો આચાર્યો ઉપાધ્યાયો અને સર્વ સાધુઓની આદરપૂર્વકની વંદના છે તેમજ તેમના તેવા ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રેરણા છે. આ મંત્ર શિરોમણી છે, 14 પૂર્વસાનો સાર છે, અનંત કોટી મંત્ર છે, તેની ઉપસ્થિતિ સ્વયંભૂ છે. આની સાધના જે કરે તેનો આત્મકલ્યાણનો માર્ગ સરળ થાય છે. આપણે આ મહામંત્રના જાપની ઉર્જા દ્વારા આપણે આપણા ઘરેથી શરૂ કરેલી નવકાર મંત્રની ઉર્જાને વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના ભાવીએ એવી આપણા સૌની ભાવના છે. આજના દિવસે હું ખાસ આભાર માનીશ કે આ પ્રસંગનો મારા કલ્યાણ મિત્ર હિમાંશુ શાહ અને તેમના માર્ગદર્શન દ્વારા આખરી ઓપ અપાયો છે. એમાં આપણા શ્રી હર્ષભાઈ સાહેબનો સતત સહકાર રહેલો છે અને આટલો મોટો વિશ્વવ્યાપી આપણો આ દિવસનો સેલિબ્રેશન ગોઠવાઈ રહ્યો છે. આ વિશાળ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે હું જીટોની અમદાવાદ ટીમ અને મારા સાથી પદાધિકારી મિત્રોનો દિલથી આભાર માનું છું. આપના ઉત્સાહભર્યા સહકારથી આજે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ. હું આજે મંચ પરથી આપ સર્વેને પ્રાર્થના કરું છું કે આ મહામંત્રના આપના જીવનશૈલીનો ભાગ બને તેવી પ્રભુને અભ્યર્થના. હવે એક એવા વ્યક્તિનો હું પરિચય કરાવવાનો છું કે એ આપણા જીટોને ઉર્જાવાન રાખે છે અને ખૂબ યશસ્વી છે. હું અમારા સિનિયર ગણપતભાઈને આગળ જીતોની માહિતી આપવા માટે રિક્વેસ્ટ કરું છું. સૌનો આભાર. જય જિનેન્દ્ર. આપણે માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબનું સન્માન કરીએ અને ત્યારબાદ આગળની વાત રજૂ કરીએ. ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું આજના કાર્યક્રમમાં ખેસથી અભિવાદન કરશે શ્રી ઋષભભાઈ પટેલ, ચેરમેન શ્રી જીતો અમદાવાદ ચેપ્ટર, અને મોમેન્ટો અર્પિત કરશે શ્રી ગણપતરાજ ચૌધરી, સ્ટીયરિંગ કમિટી સભ્ય. જોરદાર તાળીઓ સાથે માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું અભિવાદન કરીએ છીએ. આપણા સૌના માર્ગદર્શક માન્ય શ્રી સુધીરભાઈ મહેતા સાહેબ, ચેરમેન એમિરિટ્સ ટોરેન્ટ ફાર્માનું ખેસથી અભિવાદન કરશે શ્રી વૈભવભાઈ શાહ, વાઇસ ચેરમેન જીતો અમદાવાદ ચેપ્ટર, અને મોમેન્ટો અર્પિત કરશે શ્રી પ્રકાશભાઈ સંઘવી. આદરણીય શ્રી ગણપતરાજ ચૌધરી સાહેબને. જય જિનેન્દ્ર. કેમ અવાજ આવતી નથી? ગૂંજવી જોઈએ. જય જિનેન્દ્ર. ધન્યવાદ. અત્રે ઉપસ્થિત બધા ગચ્છાધિપતિઓ, आचार्य भगवंतो, साधु भगवंतो, साधुजी भगवंतों ने चरणों में नतमस्तक वंदन। हमारे गुजरात राज्य के लोक लाड़ीले जो हमेशा समाज का कोई भी प्रोग्राम होता है तो बिना एक भी मिनट खर्च किए तुरंत जो हाजिरी देते हैं, ऐसे भूपेंद्र भाई पटेल, समाज के सुश्रावक और जैन धर्म के शासन रत्न जिनको कह सकते हैं, ऐसे सुधीर भाई मेहता, और हमारे अहमदाबाद चैप्टर के चेयरमैन ऋषभ भाई पटेल और उनकी एंटायर टीम को आज विश्व नवकार मंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जितो जब से बना और जितो का एक ही प्रण था कि सब जैन भाइयों को एक छत्र के नीचे लाना, और आज जब मैं सामने 25-30 हजार लोगों को देख रहा हूं तो लगता है कि आज हमारा सपना साकार हो गया। ये एक ऐसा माहौल है जहां पर सब भगवान महावीर के अनुयायी है और कोई नहीं है, कोई गज, कोई परंपरा, कोई कुछ भी नहीं है। तो आज दिल हृदय इतना खुश है कि जो मेहनत हम लोगों ने 17-18 साल जितो को इस लेवल में पहुंचाने के लिए लगी, वो आज हमारा सपना साकार हुआ। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ऐसे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में हर एक शहर में कई 25,000, 50,000, 10,000 लोगों के बीच में
आज नवकार मंत्र का जाप होने वाला है। पर मैं बधाई देना चाहूंगा ऋषभ भाई को कि अहमदाबाद शहर में जो माहौल है ऐसा शायद हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और उसकी क्रेडिट जाती है आप सब लोगों को, मेरे सब भाइयों और बहनों जो सामने बैठे हैं, क्योंकि बिना आपके सहयोग ये कार्यक्रम इस लेवल पर इतना सफलता शायद नहीं प्राप्त कर सका। मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि टाइम की मर्यादा है, साहब आ गए। 2 क्षेत्र के लिए एक जीतो व्यापार के साथ में जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जिसको हम मानते हैं वो साधु संतों के व्यावच का श्रवण आरोग्यम। मुझे बहुत खुशी है कि आज 12-12.5 हजार साधु संतों के पास में श्रवण आरोग्यम के कार्ड है, और जितो परिवार को इनकी सेवा करने का, क्योंकि ये साधु महात्मा ही एकमात्र कड़ी है जिन्होंने आज दिन तक हमारे धर्म को और हमको जोड़ के रखा है, इन साधुओं की वजह से। और इनकी सेवा करने का जितो को लाभ जो मिलता है, तो आज टोटल हर साल हमारे को बहुत अच्छा, मैं अमाउंट मेंशन नहीं करूंगा, पर जितो का सौभाग्य है। और मित्रों मैं कहूंगा ये साधु संतों की व्यावच की वजह से और इनके साधु संतों के आदर्श आशीर्वाद के हिसाब से ही जितो आज दिन दुना और रात चौगुना प्रगति कर रहा है। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है, इसमें भी आप लोगों का बहुत सहयोग है। दूसरी एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जितो ने पिछले 2 साल पहले एक एजुकेशन असिस्टेंस लोन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम हर जैन भाई को बिना कोई क्षेत्रवाद, कोई स्टेटवाद या कोई गच्छवाद, पंथवाद, इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 25 लाख रुपीस तक का हम हमारे जैन बच्चों को पढ़ाने के लिए देने का निश्चय किया है। मैं चाहूंगा कि आप इतनी भारी मात्रा में आज जैन भाई और कई संघों का इतना सहयोग है, इतना उत्साह है, तो ये बात जरूर जन जन तक पहुंचे, और जिनको भी कहीं मदद रूप जितो हो सकता है, जितो आपकी संस्था है, हमारी नहीं है, ये जैन समाज की संस्था है। फिर से ऋषभ भाई को मैं बहुत बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को जो पिछले 1.5 महीना से रात दिन मेहनत करके आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। આજે વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે યોજાયેલા નૌકાર મંત્રના કાર્યક્રમમાં ટોરેન્ટ ચેરમેન માનનીય શ્રી સુધીરભાઈ મહેતા સાહેબને વિનંતી કરું છું આપના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, गृहमंत्री राज्य मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, अपना गच्छाधिपति श्री आचार्य साधु साध्वी भगवंत, जीटोना पदाधिकारी, अपना जैन संघना अग्रणीओ अने उपस्थित आप सौ महानुभावों ने जय जिनेन्द्र। आजे एक्चुअली आटली विशाल संख्या में आ प्रसंग ऊभो करवा माटे हूँ खास तो जीटोना पदाधिकारीओं ने कॉन्ग्रेच्युलेशन कहूँ छूँ, कारण के आटली मोटी संख्या में क्यारे आपणो जैनोनो प्रसंग थयो नथी, अने चारे फिरकाना लोको छे, एटले आपणी जैन एकता उपर जे हूँ वारंवार कहूँ छूँ के जीटोए काम कर्युं छे ए खरेखर सराहनीय छे। नवकार महामंत्रनो अर्थ अने रहस्य ने जोता ख्याल आवे छे के आ कोई एक धर्म के वर्गनो मंत्र नथी, आ समग्र सृष्टिनो मंत्र छे। विश्वमां रहेला समस्त जीवो माटे हितकारी छे। आ मंत्रनी रचयिता कोई नथी, आ अनादिकाळथी चाल्यो आवतो शाश्वत मंत्र छे। ज्यारथी सृष्टि छे त्यारथी आ मंत्र पण छे। आ मंत्र में स्व पर आत्मानी शांति ने हळनारा राग द्वेष रूप शत्रुओं ने जेने जीत्या छे तेओने नमस्कार कराया छे। समग्र गुणों युक्त अने सर्वदोष रहित सिद्धि ने नमस्कार कराया छे। धर्म शासन चलावनार 36 गुणों युक्त आचार्यों ने, ज्ञान विज्ञानना धारक पाठक उपाध्यायों ने अने 27 गुणों युक्त विश्वना तमाम साधु ने नमस्कार करवामां आव्या छे। आ पांचे ने करेला नमस्कार सर्व पापोनो नाशक अने सर्व मंगलोमां प्रथम उच्च कोटिनो मंगल स्वरूप छे।
આમાં ક્યાંય જૈન ધર્મના મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું નામ કે જૈન ધર્મના કોઈ આચાર્ય સાધુનું નામ નથી લખ્યું. આમાં કોઈ વ્યક્તિની પૂજા કે નામ સ્મરણની વાત નથી. ગુણ અને ગુણવાનને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. ગુણ અને ગુણવાનને સમગ્ર સૃષ્ટિ અને વિશ્વ માટે હિતાકારી હોવાથી આ મંત્ર માત્ર જૈનોનો જ ન રહેતા સમગ્ર સૃષ્ટિનો મંત્ર છે. આ મંત્રમાં રહેલા સકારાત્મક પોઝિટિવ તરંગો વિશ્વમાં એક પ્રકારની સુખ શાંતિ પ્રસારવાની પૂરી તાકાત ધરાવે છે. જૈન અજન ઘણા લોકો આના સકારાત્મક પરિણામ મેળવ્યાના તાજા અનેક ઉદાહરણો આજે પણ વિદ્યમાન છે. આજે ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની કગાર ઉપર ઊભેલા વિશ્વને શાંતિથી અત્યંત આવશ્યકતા છે. આ પરિસ્થિતિમાં એકમાત્ર નવકાર મહામંત્રનું સામૂહિક સ્મરણ અને શરણ જ કામ લાગી શકે છે. જૈન ધર્મ એ કોઈ વિશેષ વ્યક્તિને લઈને કે નિર્જ સ્વાર્થ પૂર્તિ આદિ ઉદ્દેશોથી નથી. આ ધર્મ સંપૂર્ણપણે અહિંસા જીવદયા પર આધારિત ધર્મ છે. આમાં જગતના તમામ જીવોને સુખની કામના કરવામાં આવી છે. કીડીથી લઈ હાથી સુધી કોઈ પણ જીવને પીડા ન થાય એ આ ધર્મનો મુખ્ય પાયો છે. અહીં કીડી અને હાથીનું ઉદાહરણ તો એક વ્યવહાર ભાષાથી આપ્યું છે. જૈન ધર્મ એટલો સૂક્ષ્મ છે કે તેણે સાયન્સને આવિષ્કાર થયો છે. તે પૂર્વેથી પાણીના એક ટીપામાં અસંખ્ય જીવો હોવાથી વાત કરી દીધી છે. વનસ્પતિ, પૃથ્વીમાં, હવામાં, આગમાં પણ જીવો હોવાની વાત કરી છે. વિશ્વમાં જ્યાં પણ સૂક્ષ્મ જીવ જંતુ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં પણ એક જીવની ગણના કે તેના સુખના કામની બાકી નથી રાખી. તેવા બારીક કહેવાતા જીવોની પણ કેવી રીતે રક્ષા કરવી તેના ઝીણામાં ઝીણા નિયમો માત્ર આ જ ધર્મમાં જોવા મળે છે. જૈન ધર્મમાં જીવો, કર્મો, અણુ, પરમાણુ આદિના જેટલી સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા કરાઈ છે ત્યાં સુધી આજના સાયન્સને પહોંચવું અત્યંત અઘરું જ નહીં, અશક્ય કાર્ય છે. સાયન્સના પ્રયોગોને આધારે ચાલે છે જ્યારે આ ધર્મયોગને આધારે ઊભો થયેલ છે. યોગથી પ્રાપ્ત સર્વપણું અને તેના આધારે આ ધર્મના સિદ્ધાંતો રહેલા છે. આજનું સાયન્સ કંઈ પણ શોધ કરે છે તે માત્ર ને માત્ર જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને સાબિત કરવા સિવાયનું નવું નથી કરતું. સંભળાતું દિલ્હીથી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો પ્રોગ્રામ લાઈવ કરવાનો હોવાથી સાહેબનો આપણે થોડી વાર રહીને મંતવ્ય પૂરું કરીશું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. નમો હરિહંતાનમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સવસાહુણમ એસો પંચનમોક્કારો સર્વપાવપણાસનો મંગલાણં ચ સર્વેષાં પરમં હવૈમંગલં નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો વાયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોય સવસાહુણમ એસો પંચનમોક્કારો સર્વપાવપણાસનો મંગલાણં ચ સર્વેષાં પરમં હવૈમંગલં નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોય સવસાહુણમ એસો પંચ
नमुक्कारो सर्व पावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयनीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो
मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जिनके नेतृत्व में राष्ट्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर अग्रसर हो रहा है, जिनकी नीतियां अहिंसा, अपरिग्रह और सत्यम की जीवंत मिसाल है, जिन्होंने विश्व मंच पर सम्यक चारित्र भारत की संस्कृति, अग्रसर हो रहा संयम और साधना का डंका बजाया है। अहिंसा, जिनका जीवन अपरिग्रह, राष्ट्र सेवा और सत्यम आत्मनिष्ठा मिसाल है और तप का प्रतीक है, जिन्हें देख मंच पर आज का युवा भारत की संस्कृति, त्याग में भी संयम, समृद्धि की प्रेरणा का डंका बजाया है। प्रधानमंत्री जी, जिनका जीवन आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति इस नवकार महादिवस को प्रतीक है, नई प्रेरणा से अभिभूत कर रही है। यह केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि जैन धर्म के मूल्यों, प्रधानमंत्री अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक है। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस अवसर की सार्थकता और नवकार मंत्र की वैश्विक भावना पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं
सादर आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे नौकारम! नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर वंदे की नौकारम! वैश्विक वंदे भावना नौकारम! पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। वंदे नौकारम! वंदे नौकारम! वंदे नौकारम! मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, एमो लोए सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार, न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में इस बार देश विदेश में एक साथ एक ही चेतना से जुड़े लाखों करोड़ों पुण्य आत्माएं एक साथ बोले गए शब्द, एक साथ जागी ऊर्जा, ये वाकई अभूतपूर्व है। श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम
नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी हैं 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से
फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के
2550वें निर्माण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापिस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापिस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। कुछ लोगों में जान आने में समय लगता है। बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषाएं बड़े ही सार घर्पित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए
हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिज जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे सो मुनि पावक कम जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए। लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो। अक्लमंद को इशारा काफी है। साथियों, ये जो मिशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक अमृत संकल्प है। नया भारत एआई से संभावनाएं खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है।
विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परस्परोग्रह जीवाना, जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर
मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। साथियों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नॉलेज का भंडार नजर आने लगा है, लेकिन न विद्या विणाणम करोति किंची, विवेक के बिना ज्ञान बस भारीपन है, गहराई नहीं है। जैन धर्म हमें सिखाता है नॉलेज और विजडम से ही राइट पाथ मिलता है। हमारे युवाओं के लिए ये संतुलन सबसे जरूरी है। हमें टैक हो, जहां टैक हो वहां टच भी हो। जहां स्किल हो वहां सॉल भी तो हो, आत्मा भी तो हो। नवकार महामंत्र इस विजडम का स्रोत बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। साथियों, आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, 9 संकल्प लेकर जाएं। ताली नहीं बजेगी। क्योंकि आपको लगा कि मुसीबत आ रही है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद उसे बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे। अब हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। मैंने एक प्रयोग किया था जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था। तो तारंगाजी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगाजी वीरान सी अवस्था है, तो यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए। और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से
मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। जिन तीर्थंकरों ने जिस वृक्ष के नीचे साधना की हो और वो वृक्ष लुप्त हो जाए, क्या हमें दिल में कसक होती है क्या? आप भी तय करें। हर तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष में बोऊंगा और मेरी मां के नाम वो पेड़ बोऊंगा। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए। नहीं करोगे? चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त, बेटियां, अपने घर में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए कितनी चीजें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। और फिर तय करिए कि इस वीक में 3 कम करूंगा, अगले वीक में 5 कम करूंगा और फिर धीरे धीरे हर दिन 9 कम करूंगा। और एक एक कम करता जाऊंगा, एक एक नवकार मंत्र बोलता जाऊंगा। साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य, हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई? आप घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा? छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्य नोहंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए।
हमें धरती मां को केमिकल से मुक्त करना है, किसानों के साथ खड़ा होना है, प्राकृतिक खेती के मंत्र को गांव-गांव लेकर जाना है। 7वां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो ताकि मोटापा दूर रहे। और आपको तो हिसाब किताब आता है, पैसा बचेगा वो काम को और काम का है। साथियों, जैन परंपरा कहती है, तपेणम तणु मनस होई। तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, हमें खेलना और योग करना जीवन का हिस्सा बनाना है। 9वां संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। अब तो आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और सारे महाराज साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये बात आपके मुंह से निकलेगी तो ताकत बढ़ जाएगी। साथियों, हमारे रत्नत्रय 10 लक्षण, 16 कारण, पर्युषण आदि महापर्व आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं विश्व नवकार महामंत्र ये दिवस विश्व में निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बढ़ाएगा। मेरा हमारे आचार्य भगवंतों पर पूरा भरोसा है और इसलिए आप पर भी भरोसा है। आज मुझे खुशी है, जो खुशी मैं व्यक्त करना चाहता हूं,
क्योंकि मैं इन बातों से पहले भी जुड़ा हुआ हूं। मेरी बहुत खुशी है कि चारों फिरके इस आयोजन में एक साथ जुटे। ये स्टैंडिंग ओवेशन मोदी के लिए नहीं है, ये उन चारों फिरकों के हबी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करता हूं। ये आयोजन हमारी प्रेरणा, हमारी एकता, हमारी एकजुटता और एकता का सामर्थ्य की अनुभूति और एकता की पहचान बना है। हमें देश में एकता का संदेश इसी तरह लेकर जाना है। जो कोई भी भारत माता की जय बोलता है, उसको हमें जोड़ना है। ये विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा है, उसकी नींव को मजबूत करने वाला है। साथियों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में अनेक स्थानों पर हमें गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस ग्लोबल इवेंट के आयोजन के लिए समस्त जैन परिवार को नमन करता हूं। आज पूरे देश में, विदेश में जो हमारे आचार्य भगवंत महाराज साहब, मुनि महाराज, श्रावक साविका जुटे हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं विशेष रूप से जीतों को भी इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। नवकार मंत्र के लिए जितनी ताली बजी, उससे ज्यादा जीतों के लिए बज रही है। जीतो एपेक्स के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी जी,